हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सेंटेंस पार्ट 1 क्लास 8 का चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का। इस चैप्टर में कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is imperative sentence and fourth one is exclamatory sentence। अब इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में we will study about more knowledge about sentences. So first of all, let us discuss about the assertive sentences. Assertive sentences. देखिए assertive sentences क्या है? Assertive sentences can be of two types. Either they can be affirmative or they can be negative. They are two types of sentences of assertive. Number one is assertive sentence number one, that is affirmative, and number two is negative sentences. Affirmative sentences की बात करें तो these are the sentences that tell something positively. Like if I give you an example, then it can be he is a brilliant student. This sentence is affirmative sentence and this is the part of assertive sentence. Second example I can use, that can be of negative sentence. This is affirmative sentence. Okay, affirmative. And now next example, that can be of negative sentence. He is not a brilliant student. We can say this is the negative sentence. This is negative sentence. Next, ये तो नंबर 1 है हमारा। assertive sentence की बात हमने की थी। assertive sentences कौन कौन से होते हैं? तो the one that is positive and the second that is negative. So two types of sentences that are part of assertive. Now number 2, that is interrogative sentences. Interrogative sentences. So interrogative sentences की अगर बात करें हम, तो interrogative sentences में those sentences which contains WH words in the beginning or helping verbs in the beginning. यानी कि वो सेंटेंसेस जिनमें या तो WH words होते हैं बिगिनिंग में या हेल्पिंग वर्ब होते हैं बिगिनिंग में. These sentences are called interrogative sentences. Like so, let me tell you, the sentences which contains WH words in it are called interrogative sentences. अब एग्जाम्पल इसके ले लें हम, तो दे कैन बी who are you. This is an interrogative sentence which is containing WH word who. Next I am writing here one more example that can be where do you live. These are the sentences that are called the interrogative sentences. The this, where and this, who. These are the interrogative words and WH words.
So these type of sentences which contains the WH words are called interrogative sentences. Now number third, imperative. IMPE, imperative sentences. इनके बारे में कल भी आप लोगों को अगर मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ये वर्ड्स हमारे यूज करते हैं, इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें एक चीज होती है कि सब्जेक्ट की बात जब करते हैं तो सब्जेक्ट पॉसिबली ज्यादातर जितने सेंटेंसेस हमारे पास होंगे उनमें सब्जेक्ट ओमिट होता है, यानी कि उसे छिपा रखा होता है, जिसे हमें अपने आप समझना होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये सेंटेंस हमारे पास जो भी होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट यूज करते हैं वो सेकंड पर्सन यानी कि यू को यूज करता है। अब एग्जांपल इसके हम लिखें तो पहले इसके बारे में लिख दीजिए। देखिए व्हाट आर इम्पेरेटिव कल आपको बताया था सेंटेंस व्हिच कंटेन्स कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, दीस आर कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ एग्जांपल नंबर 1 इसका एग्जांपल मैं आपको समझ लिख रहा हूं अभी। देखिए लाइक इफ आई से गो देयर एंड shut the door, go there and shut the door। अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पर सेंटेंस को हम लेकर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर ओमिट है बिकॉज ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर अब किसको देंगे हम? ऑर्डर किसी न किसी सेकंड पर्सन को तो हमें दिया है। अगर मैं अभी किसी से कहूँ कि जाओ पानी लेकर आओ, इसका मतलब किसी और से मैं कह रहा हूँ जो कि मेरे लिए पानी लेके आने वाला है। So same as यहाँ पर देखा go there and shut the door, यह किसी सेकंड पर्सन से कहा गया है, फर्स्ट पर्सन ने कि जाओ दरवाजे खोलो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ हमारे समझना में यहाँ यू है जो कि ओमिट है, यू हमारा ओमिट है, छिपा हुआ है। इसको हमें समझना पड़ेगा अपने आप कि इस तरह से सेंटेंस हमारा बताएगा उनमें यू हमारा ओमिट होगा, ये सब्जेक्ट ओमिट होगा, उसको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से सेंटेंस को हमारे इम्पेरेटिव। अभी इस तरह से और भी सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, सिट डाउन, डोंट टॉक। अगर मैंने ये एग्जांपल इसका मतलब मैं किसी सेकंड पर्सन से बोल रहा हूं यू सिट डाउन डोंट टॉक, तुम बैठ जाओ बात मत करो। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर यू हमारा क्या है? ओमिट है, छिपा हुआ है, समझना पड़ेगा इसको। अब बात करते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 क्या था? कल मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए फर्स्ट था असर्टिव सेंटेंस, सेकंड था इंटरोगेटिव, थर्ड था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंटरजेक्शंस को यूज किया जाता है। इंटरजेक्शंस आप जानते हैं, दोज वर्ड व्हिच शोज द सडन फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग्स लाइक अलास, ओह, वाओ, हाउ। These type of words are called the interjections. So these words are probably used in this type of sentences. These are called the exclamatory sentences. So let us write about this and understand you. This is exclamatory sentences. Alas, he died. देखिए अब यहाँ पर जो वर्ड क्या अलास, ये वर्ड हमारा जो बहुत ज्यादा सैडनेस होती है, ग्रीफ होता है, उसको शो करता है। तो यहाँ से अलास ही डाइड, यानी कोई इंसान है जो मर चुका है, मरने की वजह से जो फैमिली मेंबर्स हैं या अदर जो भी उसका जानने वाले हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान है, उन्होंने इस चीज को बोला अलास ही डाइड। अब वहां पर वो शो करे शो। अब जॉय की बात करें हम तो लाइक दिस, हुर्रे, this is E, hooray, we won the match। इस तरह से hooray, we won the match। इस तरह से सेंटेंस हमारे पास जो आते हैं ये कौन से आते हैं? ये हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनमें एक एक्सक्लेमेशन साइन जरूर होगा। तो सेंटेंस के या तो जो इंटरेस्टिंग होगा उसके बाद होगा या सेंटेंस के लास्ट होता है। इस तरीके से हमारे पास ये आते हैं। तो फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे थे वो ऐसे सेंटेंसेस की इतना ही कर रहे थे।
इसके बाद आगे की जब हम बात करेंगे वो थोड़ा सा और है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़े थे, इसी में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम बात करें तो सेंटेंसेस का पार्ट की बात करें, सेंटेंस का पार्ट का तो देखिए सेंटेंस जो भी हमारे, तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अभी इसी में हमें और देखिए क्या लेना है, सेंटेंस के पार्ट। सेंटेंस में यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही राइट्स अ गुड ऐसे। देखिए इसका सेंटेंस जो है ही राइट्स अ गुड ऐसे। अब यहाँ पास सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट and the rest part that contains a verb and the many other parts, this is called the predicate। तो सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो सेंटेंस में मेन वर्क करने वाला पर्सन होता है, उसे बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन है ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। रेस्ट पार्ट जो इसका है वो हमारे पास क्या है, ये इसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमेशा याद रखिएगा, इसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। तो ये वर्ब को पता चलता है, ही राइट्स अ गुड ऐसे। अब ये तो हमारे पास सिंपली एक हो गया। जो सब्जेक्ट की बात करें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग होगा, प्रेडिकेट अलग होगा। प्रेडिकेट में आपको पार्ट दिया जाएगा, देखिए ये वर्ब है, यहाँ हमारे पास आर्टिकल है ए, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से होता है। अब एक बात हम करें इसमें सेंटेंस की, और एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ यहाँ पर। सेंटेंस के पार्ट हमारे पास और क्या होता है, ये चीज होती है सब्जेक्ट में। एक सेंटेंस में एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए एट्रीब्यूट सेंटेंस में एग्जांपल लिखा आपको सामने, द वेदर, सॉरी दिस इज द एग्जांपल आई विल राइट हियर, द हॉट वेदर, the hot weather hurt him। अब देखिए यहां हम बात करें तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सब्जेक्ट हमारे पास है द हॉट वेदर। लेकिन आप हॉट वेदर को समझना है आपको कि जो मेन सब्जेक्ट है हमारे पास केवल वेदर है। वेदर को बताने के लिए हमारे पास यहाँ एक वर्ड यूज किया हॉट। ये जो हॉट वर्ड है ये क्या होता है, हम इसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेदर को उसकी क्वालिटी में बता रहा है कि वेदर हमारे साथ हॉट है। लेकिन यही जो एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं, यही जो एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं, यही एडजेक्टिव हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। ये एडजेक्टिव ही क्या कहलाता है, हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। इस एट्रीब्यूट को समझना होता है कि ये कौन होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएगा। सब्जेक्ट से आइदर इट कैन बी बिफोर और इट कैन आफ्टर द सब्जेक्ट। तो अभी फिलहाल हमारे पास हमें यही देखना था कि एट्रीब्यूट क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट क्या है। एक सब्जेक्ट पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट का पार्ट, सॉरी सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा इतना हो गया, अब बाकी ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो अभी केवल इतना ही है, इसे ध्यान रखिएगा कि हमें किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को समझना है, किस तरह से ऑब्जेक्ट को समझना है और प्रेडिकेट को समझना है, और जो एट्रीब्यूट हमारा होता है वो एट्रीब्यूट क्या होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।